Hope, dear students, that you are fine. So, welcome again in another unit, that is the equilibrium. Actually, we have to study chemical equilibrium. तो पहले इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम भी देख लेते हैं. तो इक्विलिब्रियम से हम स्टार्ट करेंगे. So in this unit, the main objective of this unit will be, we will study what is physical equilibrium, characteristics of physical equilibrium. Just we are having the various physical equilibrium, just we are having the melting of ice and conversion of solid into liquid. Similarly, liquid solid equilibrium, that is the freezing of water. Similarly, we are having dissolution of salt or sugar in water, that also comes in physical equilibrium. We will also study chemical equilibrium. We will also study equilibrium constant and its characteristics. We will also study law of mass action and similarly law of chemical equilibrium. In this unit, we will also study about acid base concept, that is the various concepts regarding acid and base, like Arrhenius concept of acid and base, Bronsted-Lowry concept of acid and base, similarly Lewis concept of acid and base. We will also study about Ostwald's dilution law. We will also study about the pH scale, concentration of hydronium ion. We will discuss all these. We will also study about solubility and solubility product, common ion effect. We will also study the various factors which will affect the equilibrium, in which we will discuss the very important principle, that is the Le Chatelier's principle and its application. So let's start this unit, equilibrium. The equilibrium word actually means balance. Equilibrium word जो है इसका मतलब होता है balance. So equilibrium state एक ऐसा state होता है in which there is a balance between the reactants and products. Whenever we have a chemical reaction, we are having reactants, right? Let's say A is our reactant, it gets converted to product B. But sometimes when we carry out reaction in a closed container, closed vessel के अंदर क्या देखा गया? That we are having both reactants as well as products are present there. इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फिर से डिसोसिएट होता है इनटू द रिएक्टेंट ए. सो द इक्विलिब्रियम स्टेट, it is represented by this double half arrows. So A and B, they are in equilibrium with each other. They are in a balanced condition. जहां पे भी बैलेंस होगा, देखो एक्चुअली यहाँ पे जब भी इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे दो अपोजिंग प्रोसेसेस होते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्शन ऑफ ए इनटू बी, ये एक प्रोसेस है. दूसरा अपोजिट प्रोसेस जो यहाँ पे ऑकर हो रहा है, दैट्स कन्वर्शन ऑफ बी इनटू ए. व्हेन द टू अपोजिंग प्रोसेसेस दे आर इन अ balancing position, ठीक है. When the rate of forward reaction, it is equal to the rate of backward reaction, that represents the equilibrium. So equilibrium के बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. जैसे melting of ice जो है, that's also represents a physical equilibrium. Physical equilibrium में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केमिकल प्रॉपर्टी वहां पे चेंज नहीं होगी, only there is physical change. ये हम अभी आगे देखेंगे डिटेल में, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. अभी इसको समझते हैं. सो इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है that the two opposing processes, they are in a balanced condition, they are in a balanced position. जैसे यहाँ पे rate of forward reaction, that means A का conversion B में, this is the forward reaction, and B का conversion back into A, that is the backward reaction. So the rate of the two processes, that is the two opposing processes, when it becomes equal, that represents our equilibrium. Now इस equilibrium को हम ऐसे भी define करते हैं. You will define this equilibrium as that equilibrium represents a state when the observable properties like we are having color, like we are having the temperature and pressure,
एटसेट्रा, बहुत सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जो हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं. So equilibrium represents a state when the observable properties like color, temperature, pressure, etc. do not show change with time. जब भी ऐसा होगा that these properties, है ना, कोई भी प्रोसेस है उसमें हमें देखना है क्या इक्विलिब्रियम वहां पे है. तो अब सिंपली क्या देखेंगे, अगर वहां पे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जिनको हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कलर, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, अगर वो चेंज नहीं हो रही है, दे आर रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है, सो दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट. जैसे अगर हमारे पास एक लेट्स से वी आर हैविंग ए क्लोज्ड कंटेनर, इसके अंदर हमने सॉलिड आयोडीन ले लिया. तो सॉलिड आयोडीन जो है इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लैक पर्पल कलर. ठीक है, ब्लैक पर्पल. पर थोड़ा सा अगर इसको हम हीट करेंगे तो एक्चुअली आयोडीन जो है इट अंडरगो सब्लिमेशन, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. और वेपर इसका जो कलर होता है दैट्स वायलेट कलर. नाउ अब क्या होगा, देखो सॉलिड धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होगा. बट नाउ इफ दिस कंटेनर इज क्लोज, ठीक है, अगर ये क्लोज्ड है तब ऐसा होता है दैट ये जो वेपर्स इसके बने आयोडीन के, ये फर्दर सॉलिडिफाई होके इस सॉलिड आयोडीन में बैक कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सॉलिड आयोडीन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयोडीन वेपर्स, है ना, आयोडीन इज I2, आयोडीन वेपर्स को हम कह सकते हैं आयोडीन गैस. तो सॉलिड से ये गैस में कन्वर्ट हो गए. अब ये जो वेपर्स है दे आर सॉलिडिफाइंग बैक, ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब क्या होगा यहाँ पे देखो, पहले ब्लैक पर्पल पूरा ब्लैक कलर था, अब ये वायलेट में कन्वर्ट हो रहा है. पर धीरे धीरे अब ऐसा होगा, दैट मीन्स वायलेट कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, पर धीरे धीरे अब ऐसा होगा कि ये वेपर्स फिर से सॉलिडिफाई हो जाएंगे इनटू दिस सॉलिड आयोडीन, फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस सॉलिड आयोडीन विच इज हैविंग ब्लैक पर्पल कलर. तो अब एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब कलर जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट. तो जब कलर कांस्टेंट रहेगा वी से दैट इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड. और उस इक्विलिब्रियम पे ऐसा होगा दैट द रेट ऑफ सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन का मतलब ये हुआ सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. सो रेट ऑफ सब्लिमेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन दैट मीन्स ये जो वेपर्स है फिर से कन्वर्ट हो रहे हैं बैक टू सॉलिड आयोडीन. तो इन दोनों की जब रेट बराबर होगी दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट. और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. सिमिलरली जहां पे टेम्परेचर चेंज फिर नहीं दिखाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, सो दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम. सो आप डिफाइन करेंगे, equilibrium simply represents a state in a process when the observable properties like color, temperature, pressure, concentration do not show any further change. They remain constant. So that represents the equilibrium state. Now ये जो equilibrium है it is mainly divided into two types. एक को हम कहते हैं physical equilibrium, दूसरा जो है उसको हम बताते हैं chemical equilibrium. Physical equilibrium and chemical equilibrium. So नाम से ही समझ में आ रहा है that physical equilibrium जो है यहां पे ऐसा होगा that जो भी प्रोसेस होगी वहां पे सिंपली फिजिकल चेंज होगी. There will occur only physical change. There will be no chemical change. या कोई केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी प्रोसेस के दौरान, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगी. सो देयर इज ओनली फिजिकल चेंज. दैट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल इक्विलिब्रियम. सो व्हेन द टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज, देयर इज नो एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन,
दैट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हम इसमें एग्जांपल देते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, देखो अगर हमारे पास ओके किसी कंटेनर में हम लेते हैं आइस के कुछ पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स हम ले रहे हैं, और इसी में वाटर भी है, ठीक है, इसी में वाटर भी है, ये आइस के कुछ क्यूब्स हैं, और ये इसमें वाटर हमने रखा, और टेम्परेचर हमने रखा 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, टेम्परेचर 0। नाउ अब यहाँ पे ऐसा होगा, अगर ये हम इंसुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब ने हीट इसको, इसमें हीट एनर्जी को एंटर होने देंगे, नहीं हीट एनर्जी जो है इससे बाहर निकलेगी। इंसुलेट हमने इसको किया, इंसुलेशन, ठीक। तब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जितना आइस हमने इसके अंदर रखा, जितना वाटर इसके अंदर हमने रखा, वो सेम रहेगा, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी। दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आइस एंड वाटर इट रिमेन्स सेम एंड इट रिमेन्स एट दिस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम बताएंगे इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम। पर ये जो इक्विलिब्रियम है फिजिकल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो एनी केमिकल चेंज, देयर इज नो एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। ये जो सबस्टेंसेस हमारे पास है, आइस है, वाटर है, इनकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, दैट्स आवर H2O। चाहे वाटर हो उसके अंदर भी यही है कंपोजिशन, चाहे हमारा आइस हो तो उसके अंदर भी यही कंपोजिशन है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, राइट, डिसोल्यूशन ऑफ sugar or salt in water, that also represents the physical equilibrium। ये हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, बस अभी इतना समझो कि इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। नाउ इन केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे केमिकल चेंज होती है। इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर इज ए केमिकल चेंज, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। जब भी कोई प्रोसेस ऐसी होगी जहां पे सबस्टेंसेस की केमिकल कंपोजिशन चेंज होती होगी, दैट रिप्रेजेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे इसमें सिंपली केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ही होती है, और जब हमारे पास ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जहां पे rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, that also represents chemical equilibrium। just we are having Haber's process में nitrogen gas is reacted with hydrogen gas and it forms ammonia, that's NH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बैलेंस करने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई 2 and 3 है। तो ये भी जब हम एक क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिला, दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्टेंट्स है दे फर्स्ट गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट अमोनिया, अमोनिया फिर से डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ऐसा होगा दैट देयर इज बैलेंस, बैलेंस कब आ जाएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वी से दैट देयर इज इक्विलिब्रियम, इट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस इक्विलिब्रियम को हम बताएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। या सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे इसमें हम केमिकल रिएक्शंस एग्जांपल दे सकते हैं। सिंपली अब हम यहाँ पे याद रखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इनटू मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम and ionic equilibrium। So it is further classified into two types। one is called the molecular equilibrium, जिसमें equilibrium जो होगा between molecules होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। So chemical equilibrium can be further classified into molecular equilibrium, molecular equilibrium। अब यहां पे क्या होगा, सिंपली इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैं। सो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है देयर विल बी इक्विलिब्रियम। जैसे यही एग्जांपल है, जस्ट वी आर हैविंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स अमोनिया। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है इट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन हैबर्स, इन कंटैक्ट प्रोसेस, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। ये जो प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है, इस रिएक्शन का।
हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाया जाता है और कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स यहाँ पे भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट रिप्रेजेंट्स आवर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इसको आप इजिली बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे भी ट्वाइस। सो इट इज मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी केमिकल इक्विलिब्रियम का टाइप जो है, दैट इज द आयोनिक इक्विलिब्रियम। So in ionic equilibrium, definitely this will be the equilibrium, there will be the balance between the ions. अगर हमारे पास ions है और उनके दरमियान equilibrium है, that is the ionic equilibrium. Just in case of we can have this type of equilibrium in case of salts, in case of acids, ठीक है, bases. तो यहाँ पे जो equilibrium होगा, that is the ionic equilibrium. Just we are having, अगर हमारे पास ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH बेस है, so when it ionizes it will give us NH4 positive OH negative. तो यहाँ पे ions है, so इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, which involves equilibrium between the ions, ठीक है, जहाँ पे ions इन्वॉल्व होंगे। जैसे हमारे पास एसिड है ना, this is our hydrochloric acid. When it ionizes, what it will give? H positive, Cl negative. So it represents the ionic equilibrium. तो ये भी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो ये हमने जनरल में देखा कि एक इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम जो होता है, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, ये जो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम डिटेल में, जिसमें हम देखेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स, सिमिलरली बिटवीन सॉलिड एंड वेपर्स। वहां पे हम देखेंगे दैट ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो, इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट फिजिकल एंड chemical equilibrium or dynamic in nature. Dynamic in nature. That means ये static नहीं होते हैं, ये dynamic हुआ करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, nature of equilibrium. Equilibrium का nature कैसा होता है? क्या ये static होता है rest में? No, ये dynamic होता है motion में। Let's see कैसे। How फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इन नेचर। देखो अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम कुछ क्रिस्टल्स लेते हैं, क्यूब्स लेते हैं आइस की, ठीक है, हमने कुछ क्यूब्स या क्रिस्टल्स ले लिए, आइस के क्रिस्टल ले लिए, ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये है प्रेजेंट, और कुछ वाटर हमने ले लिया, थोड़ा सा वाटर ले लिया यहाँ पे। सो दिस इज अवर वाटर हियर, आइस एंड वाटर, ठीक है, और हमने टेम्परेचर रखा 0 डिग्री सेल्सियस और हमने इसको किया इंसुलेट, राइट। सो एडियाबेटिक वॉल का हम यहाँ पे यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं एडियाबेटिक वॉल, दैट मीन्स द वॉल विच विल नॉट ईदर allow heat energy to pass into this container nor it will allow to let heat energy out of this container. तो adiabatic wall जो है, इससे ऐसा होगा कि ये इसको इंसुलेट करेगा, है ना, इंसुलेशन सिंपली। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जितना आइस हमने रखा, जितना वाटर हमने इसके अंदर रखा, उसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी एंड दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम, बैलेंस है दोनों में। पर हमें ऐसे अगर हम फिजिकली देखते हैं तो हमें लगता है बस जितना आइस डाला, जितना वाटर डाला वही है और वैसे ही कांस्टेंट पोजीशन पे है, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम इसको गौर से ऑब्जर्व करते हैं, है ना, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज होते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो आइस है, इसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं वाटर में, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस होके, वो सॉलिडिफाई होके आइस में कन्वर्ट, वो फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट होते हैं। सो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है आइस के कन्वर्ट होते हैं वाटर में, ठीक है, दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है,
और नेक्स्ट जो है दैट इज वाटर फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट होता है। तो अब इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस it is equal to the rate of freezing of water, right? जब इन दोनों की रेट बराबर होगी तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट रिप्रेजेंट करेगा ये, तभी तो इक्विलिब्रियम हम कहते हैं। इक्विलिब्रियम तभी होता है जब दो अपोजिंग प्रोसेसेस जो है उनकी रेट कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गई रेट, सो इट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। पर ऐसा नहीं है कि बस जितने आइस के पार्टिकल्स है बस वो उतने ही है, वाटर के भी वो तो सेम रहेंगे ही। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि दोनों के रेट सेम है। जितने आइस के पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वाटर के पार्टिकल्स आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये रेस्ट पोजीशन पे नहीं होता है। कुछ आइस के पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पर इनकी रेट जो है एट दिस टेम्परेचर इट रिमेन्स सेम। तो इट रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम जो होता है ये डायनामिक इन नेचर है। तो ये वैसे ही आप केमिकल इक्विलिब्रियम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम कैरी आउट करेंगे इन ए क्लोज्ड वेसल और कंटेनर, तो यहां पे भी आपको क्या लग रहा है? देखो, पहले रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट फिर से डिकम्पोज हो रहा है बैक टू रिएक्टेंट्स, पर एक स्टेज ऐसा आएगा व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। At that equilibrium state, you will find that concentration of this ammonia and these reactants, it will be same. वो तो सेम होगा ही, पर एक्चुअली क्या होता है, ये स्टैटिक फिर नहीं रहता है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब भी ऐसा होता है कि ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है रिएक्ट होके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, पर जितने ये मॉलिक्यूल्स अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बैक कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू दीज रिएक्टेंट्स। सो वी सी दैट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। ये आप ऐसे समझ सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये हमारे पास लेट्स से एक कंटेनर है, इसके अंदर यहां से एक टेप से वाटर इंटर हो रहा है, ठीक है, यहां से इसमें वाटर आ रहा है, ठीक है, लेट्स से इसमें वाटर इंटर हो रहा है। अब यहां से दूसरी टेप लगी हुई है जिससे वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जितना वाटर इंटर हो रहा है उतना ही वाटर यहां से बाहर आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे वी विल से दैट लेट्स से रेड कलर का वाटर इसमें इंटर हो रहा है, रेड कलर है, और यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रही है या किसी चीज की वजह से इसका कलर ब्लू हो जाता है, यहाँ से ब्लू कलर वाटर बाहर निकल रहा है। और जितना वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। लेट्स से जो वाटर इसमें है वो इस ए लेवल तक रहती है, इस पॉइंट तक, ठीक। लेवल चेंज नहीं हो रही है वाटर की। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इस टैंक के अंदर, इस वेसल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, दैट रिमेन्स सेम। सो कंसंट्रेशन, ठीक है, या द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट रिमेन्स सेम। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम, पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इट इज डायनामिक। आपको लग रहा है, अगर हम यहाँ पे वाटर की लेवल देख रहे हैं तो हमें लग रहा है वाटर की लेवल कांस्टेंट है, बैलेंस्ड है। बैलेंस मींस इक्विलिब्रियम, सिंपली इक्विलिब्रियम एक्चुअली लिटरली सिंपली मींस बैलेंस। तो यहाँ पे पर होता क्या है, ये तो स्टैटिक तो नहीं है, ये भी डायनामिक है। डायनामिक क्यों है, क्योंकि यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है और यहाँ से वाटर लीव हो रहा है। तो दैट मीन्स इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज नॉट स्टैटिक। तो ये आप याद रखेंगे दैट इक्विलिब्रियम जो है it is always dynamic in nature। चाहे वो physical equilibrium हो या चाहे वो हमारा chemical equilibrium हो, they are dynamic in nature।